distance with speed a with speed a second half with speed b, average speed of the body is. Now the question is, if you consider this one is a total distance I am taking s, half distance is s by 2, second half distance is s by 2. This a to b is the half distance, b to c is the half distance. This one is covered with the speed a, second half is covered with the speed b. Let time taken for the first half is t1 and second half is t2. So in the given problem, a and b are given, means the speeds are given. So in final answer, a and b should be there. This is unnecessary. S is not given in the problem, it should not be there. T1 and T2 not given in the problem, it should not be there. So now we are first I am taking AB. What is the speed formula? Distance by time. Distance speed is A is equals to S by 2 by T1. So T1 equals to S by 2A. Clear? Similarly, T2 is equals to S by 2B. Since average speed formula is total distance by total time. So total distance, what is taken from A to C? S. Total time is T1 plus T2. What is T1 value? S by plus S by 2B. So here S, what is common here? S is common, 1 by 2A plus 1 by. So now SS get cancelled. LCM is 2AB. 2AB is divided by 2A. B is left. B ones are plus 2AB is divided by 2AB is divided by 2B. 2B get cancelled. A ones are A. So you can write 2AB by, in order write down A plus B. This one is average speed. देखो क्या बोला बेटा क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस है कुछ तो भी, आधा डिस्टेंस स्पीड ए से चला, फिर बचा हुआ आधा स्पीड बी से चला, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो यहाँ ए से बी को हाफ मान लिया मैं, बोलते एस बाई 2. टोटल कितना है? एस है, हाफ कितना माना? एस बाई 2. ये कौन सी स्पीड से चला? इसको टाइम कितना लगा नहीं मालूम मुझे, T1 ले लिया. सेकंड हाफ B2C है, वो कौन से स्पीड से चला? B से. इसके लिए टाइम कितना लगा नहीं मालूम मुझे, T2 ले लिया. स्पीड का फॉर्मूला है S by T. A से B तक की स्पीड कितनी है? A है. डिस्टेंस कितना है? S by 2. टाइम कितना लगा? ये T1 को इधर भेजो, A को नीचे भेज दो. ये नीचे तो 2 है पहले से ही, तो S by 2A हो गया. वैसे इसको भी लिए तो T2 भी वैसे आने वाला है. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? S है. टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिए अपन. T1 का वैल्यू S बाई, T2 का वैल्यू S बाई. अब ये नीचे में S कॉमन आ गया, ये ऊपर वाला नीचे वाला S डॉलर बन गया, कट गया. मैं काटा तो डॉलर दिख रहा ना, इसलिए बोला. तो 1/2A प्लस 1/,
अब यहाँ पर 2a और 2b का एलसीएम क्या आएगा, 2ab आया, 2ab को 2a से डिवाइड करो, क्या बचा, b बचा, b को ऊपर वाले से इंटू करो, b वन जा, ये 2ab को 2b से डिवाइड करो, a बचा, a को 1 से इंटू करो, a वन जा a, अब ये लुढ़क के नीचे से नीचे वाला लुढ़क के ऊपर आ जाता, 2ab, इसको लाइन से जमा दिए a प्लस बी। अब इसको ये क्वेश्चन को कैसा लिखते हैं मालूम है, 50% ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ए एंड सेकंड 50% इज कवर्ड विद द स्पीड बी, फाइंड द एवरेज स्पीड, वही छुआ, वही जो था फॉर्मूला। अब इसको ही क्वेश्चन चेंज कर देंगे वेलोसिटी में, व्हेन अ बॉडी इज कवरिंग द हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द वेलोसिटी v1, सेकंड हाफ विद द वेलोसिटी v2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, सेम 2v1 v2 बाई, हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेंगे, वेलोसिटी में ले लेंगे, चलो सेकंड वेलोसिटी भी करा दिया ना आप लोगों को। नाउ अ बॉडी कवर्स 1/4 of distance, 1/4 of displacement with velocity v1, next half with velocity v2, and last 1/4 of displacement with velocity v3, then average velocity is dash. Now just see, here I am taking A to B is the total displacement S, 1/4 S by 4 with the velocity, time I am taking t1, this one is AB, B to C, यहाँ लेंगे C, this one is S by 2 with velocity, time t2, last 1/4 with velocity, time, this one is A, B, C, D. Now for AB, what is the velocity formula? Displacement by time. Velocity, first velocity is v1, S by 4 by t1, so t1 equals to S by 4v1. Similarly for BC कितना होगा, T2 is equals to S by 2 है नीचे 2v2. For CD T3 equals to S by 4v3. कोई डाउट है तो बोलो बेटा। अब देखो टोटल टाइम, यहाँ एक स्टेप एलसीएम नीचे से नीचे नहीं लेके यहीं ले रहा हूं, सो दिस वन इज T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 इज S by 4v1, S by 2v2, S by 4v3, S कॉमन ले लो आप लोग और एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 4v1 v2 v3, ये नीचे वाले को ये 4v1 से डिवाइड करो, क्या बचेगा v2 v3 बचेगा, इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है, ये पूरे के नीचे ये डालना, तो 4v1 ये 4v1 कट जाता, v2 v3 बोलते यहाँ एस कॉमन लिए तो 1 बचाना, सो v2 v3, रुक रहा हूं, डाउट है पूछ लो। कौन सा, ये
वो फिजिक्स में क्या दम था, हमारी नाव तो मैथमेटिक्स डूबा गया। सच में फिजिक्स में बच्चे की डूबती कहाँ मालूम है, नाव एलसीएम में डूबती। नीचे वाला कौन सा है बेटा, 4v1 v2 v3, उसको ये नीचे वाला है, नीचे वाले को ये नीचे वाले से डिवाइड करो, कटा क्या, जो बचा ना ऊपर वाले से इंटू करो, ऊपर क्या बचा है, इसका अमल लेने के बाद 1 बचा, तो क्या v2 इंटू v2 v3 बन जा प्लस, अब ये पूरे को 2v2 से डिवाइड करूंगा, 4v1 v2 v3 को 2v2 से डिवाइड करे तो v2 v2 कट गया, 2 2 जा बचा क्या, ऊपर जो एस कॉमन लेने के बाद 1 बचा उससे इंटू कर दो, 2 प्लस ये पूरे को 4v3 से डिवाइड करो, v1 v2, अब ऊपर 1 जो एस कॉमन लेने के बाद बचा उससे इंटू करो, v1 v2 है v3 है v2 है, हो गया। ये क्या आ गया, टोटल टाइम हो गया। अब मुझे बोलो एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज एस, टोटल टाइम कितना है, s इंटू v2 v3 प्लस 2v1 v3 प्लस v1 v2 डिवाइडेड बाई 4v1 v2 v3। अब ये एस एस कट गया, ऊपर भी जा दो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4v1 v2 v3 बाई v2 v3 2v1 v3 प्लस v1 v2, हो गया, कोई डाउट? नेक्स्ट, a body covers 1/3 of the distance, डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या निकालूंगा, एवरेज स्पीड, 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड, बोल लो कुछ भी, एक्स ले लो, सेकंड 1/3 विथ स्पीड y, एंड लास्ट 1/3 with speed z, find average speed। देखो बेटा, ये इसके 3 टुकड़े करेंगे, कर दिए, ये पूरा एस है, s/3 कौन सी स्पीड से, टाइम, सेकंड 1/3 टाइम t2, s/3 विथ टाइम t3, हो गया। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ए बी के लिए बोलो फास्ट, सिंस v इज इक्वल्स टू s/t है, सो v इज x, s/3 इंटू s/3 by t1, so t1 is equals to s/t1। ए बी के लिए आया, बी सी के लिए क्या आएगा, t2 is equals to s/3y, हो गया। ये गलत लिखा, देखो x नहीं डाला मैं, t1 डाला। नेक्स्ट सी डी के लिए क्या लिखूंगा, t3 is equals to s/3z, सब जैसे का वैसे ही। अब टोटल टाइम निकाल रहा हूं, टोटल टाइम क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3, यह अलग सेपरेट कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम 17 ना,
s by 3x, s by s by s कॉमन एलसीएम 3xyz, 3xyz को 3x से डिवाइड करो, क्या बचा? 3y से डिवाइड करो, xz से डिवाइड कर, 3z से डिवाइड करो, xy। ये क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस क्या लिए ऊपर? s। ये क्या होगा? टोटल टाइम yz प्लस xz प्लस xy डिवाइडेड बाय 3। ये कट गया, ये लुढ़क के ऊपर गया, 3xyz डिवाइडेड बाय, लाइन से जमाओ, पहले xy फिर yz फिर xz, जमाना है तो जमाओ। हो गया? थोड़ा हटो बेटा, अब सामने आ जाओ। यहाँ आ जाओ, जगह है। हेलो, यहाँ सामने बैठ सकते हैं आप। सर्टेन डिस्टेंस इन हाफ टाइम विथ स्पीड ए। वो आराम से बैठो से देखो अभी तक, अब लेते देखो हाथ में से। अभी ये बैठ के यही सोचा था इसका उल्टा क्वेश्चन कैसा बना रहा हूं। अ बॉडी कवर सर्टेन डिस्टेंस इन हाफ टाइम विथ स्पीड ए and second half and remaining distance with speed b in last half time. Find average speed of the body. Just say this one is half time, t by 2, this one is t by 2. Total time taken is t. This distance s1, this distance s2, कितना चला नहीं मारा हमारे? This one is with a speed a, with speed b, a b c. I am calculating for a b. Since v is equals to distance by time, so a is equals to s1 by t by 2. So a is equals to 2s1 by t. डिस्टेंस बाय टाइम होता ना, पहला टाइम कितना दिया? t by 2, ये ऊपर गया तो 2s1 by t आ गया। नाउ so what is s1 from here? 2 9 at by 2. Similarly for BC, S2 is equals to BT by
2. So total distance S1 plus S2, AT by 2 plus BT by, what is common? T is common. So LCM will be 2. So A plus B. Clear? Now what is average speed formula? Total distance by total time. Total distance is what? T into A plus B by divided by total time is T. Get cancelled. A plus B by 2. अब जरा देखो आप लोग, इतना बड़ा करें अपन, ये असल में 10th क्लास में अर्थमेटिक मीन करते थे। दो स्पीड दो है तो टू को ऐड करके डिवाइड कर देते, 3 है तो 3 को लेके डिवाइड कर देते। या यही चाहे आंसर। स्पीड्स हाउ मेनी? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं 1/3 टाइम 1/3 टाइम 1/3 टाइम, तो क्या आएगा फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। इसीलिए ऐसा रिवर्स प्रॉब्लम आया ना तो ये आंसर नहीं डालता बच्चा, क्योंकि बोल तो ये क्वेश्चन अपने को क्या बताना मालूम है, कुछ उल्टा सीधा लिखो सा बता रहा, जबकि है ये अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट, velocity of body is given by I plus J plus K for body A, given by I plus J plus K for body B, I plus 2J minus K, and angle between these velocities is pi by 3. If velocity of body A is changed to 3I plus 3J plus 3K cap, and the top B minus 2I minus 4J plus 2K cap, then angle between two vectors, two velocities in second case is dash. बहुत बड़ा दिख रहा, बहुत हार्ड दिख रहा, वैसा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो सिर्फ क्वेश्चन इतना बढ़ा दे ताकि आप पढ़ने में कम से कम बोलते हुए 30 सेकंड बर्बाद कर देना, अगले 20 सेकंड समझने में। समझ में आ गया तो जब भी आंसर, नहीं समझ में आया तो 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट फिर 3 घंटे भी लगाए तो नहीं आता। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई minus x minus y. First velocity is given this one, I cap plus j cap plus k cap.
I am taking this one is v1, v1 बार. सेकंड वेलोसिटी कितनी दिया बेटा, यहां पर है देखो, दिस वन इज आई कैप प्लस 2j कैप, दिस वन इज v2 बार. अब इसके अंदर सेकंड केस के अंदर क्या कर दिया, इसका बढ़ा दिया, बस बढ़ा दिया बोलते ये आई जे के था ना, तो बढ़ा के ये वेक्टर को बढ़ा दिया ऐसा, तो क्या बन गया 3i प्लस 3j प्लस 3k के क्या. और सेकंड वेक्टर को क्या कर दिया, डबल कराओ, डायरेक्शन भी बदल दिया. देखो इसका क्या है, आई है, इसका माइनस आई है, इसका 2j है, माइनस 4j है, इसका माइनस k है, 2k है, यानी उल्टा कर दिया, पूरा साइन बदल दिया. तो इसका उल्टा करो जरा प्लीज, ये उल्टा हो गया. ये क्या है, माइनस 2i माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये प्लस 2k कैप. ये एंगल कितना दिया था आपको, π/3. ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है, ये दो के बीच में एंगल कितना रहेगा, आधा सर्कल है, आधा सर्कल कितना होता 180 होता, बोलो ये पूरा भी 180 होने वाला है. तो ये कितना रहेगा बोल तो पाई, ये पूरा पाई है, पाई में से ये π/3 निकाल दो, दिस वन इज 3π माइनस π/3 इक्वल्स टू 2π/3. तो ये एंगल कितना हो गया, कितना बड़ा क्वेश्चन है देख लो. ये वेक्टर है पहले केस में, ये वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया π/3. उन क्या बोला, पहले वेक्टर को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ वाइच, सेकंड वेक्टर को क्या कर दे रहा हूँ, बड़ा भी कर रहा हूँ और उल्टा भी दे रहा हूँ, बड़ा भी कर रहा हूँ उल्टा भी दे रहा हूँ. बड़ा कितना करा, डबल कर दिया, और पूरे के साइन चेंज कर दिया, बोलते अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया. तो ये दो के बीच में एंगल π/3 है, ये और इसके बीच में कितना एंगल है, तो क्या होगा, ये पूरा कितना है, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एंगल कितना होता पाई, पाई में से π/3 निकाल दो, बचा कितना 2π. नीट में क्वेश्चंस बोलते ऐसे रहते, छोटे रहते करने के, लेकिन सोचने के रहते, आप पढ़ के क्या है वो है. नाउ a body moving with velocity ten meter per second for 3 seconds and 20 meter per second for 5 seconds. Average velocity of body. Average velocity of body is dash. So just average velocity formula is total distance by कुछ भी नहीं है. देखो बेटा ये तो नहीं लगेंगे आपको, कंपलसरी है. यहाँ पर दो वेलोसिटीज दे दिया, वो 3 सेकंड के लिए चलो, 5 सेकंड के लिए लियो, चलो 100 सेकंड के लिए चलो, हमारे को लेना देना है नहीं. तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या आएंगी, टोटल वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, जो अर्थमेटिक मीन करे ना आप लोग 10th क्लास में वही. अब टोटल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 प्लस 20, कितने वेलोसिटीज है, 2 है, 2 से डिवाइड करो, 30/2, दिस वन इज 15 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, अ बॉडी covers 100 meter in 15 seconds and 200 meter in
10 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इज, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला तो वेलोसिटी भी बोलो, स्पीड बोलो, वही होगा। नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहला डिस्टेंस कितना है, दूसरा कितना है, टोटल टाइम कितना है। पहले के लिए 10, सेकंड के लिए, पहले के लिए 15, सेकंड के लिए 10, सो 300 बाई 25, 25 वन जा 25 टू जा मीटर पर सेकंड। दिस वन इज एवरेज वेलोसिटी। तो अलग अलग टाइप से पूछता हूँ क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या दे दिया, ऊपर की वेलोसिटी दे दिया, टाइम भी दे दिया। सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। दिख रहा नहीं, मैं बीच में आ जाऊँ। कौन सा बेटा, ये क्या है मालूम है, ये वेक्टर है ना, ये दिया, ये वेक्टर ये दिया, और ये वेक्टर ये दिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/3। ये वेक्टर को क्या कर दिए, कहते हैं ये बना दिए 3i 3j 3k, बोलो 3 टाइम्स बढ़ा दिए। तो मैं भी डॉट डॉट डाल के बढ़ा दिया, उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करा। लेकिन इसका देखो, ऊपर i प्लस 2j माइनस k है, तो i का क्या हो गया, -2i हो गया, यानी डबल, और डायरेक्शन भी चेंज। 2j का -4j यानी डबल भी हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ। -k का डबल हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, +2k, यानी इधर था तो पूरा इधर हो गया। ये π/3 है, ये क्या होता है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का एंगल कितना रहता, पाई। तो ये π/3 है, तो बच्चों से कितना रहेगा, पाई में से ये एंगल निकाल दो, पाई में से π/3 निकाल दिए, 2π/3। हाँ, कहाँ पर, यहाँ पर है नहीं, पहले से क्या दे दिया आपको, वेलोसिटी दे दिया, डिस्टेंस नहीं दिया। यहाँ पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ वेलोसिटीज। आप लोग 10th क्लास में अर्थमेटिक मीन करे थे वो, क्योंकि वेलोसिटीज दे दिया। यहाँ पर क्या दिया, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये फिजिक्स है, ये मैथमेटिक्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल formula of length is dash। हाँ, पहले चैप्टर तो कर लिया, कभी अभी पढ़ना चालू कर दिया, पहले से पढ़ रहा हूँ। तो वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिए, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, V and T are taken as the fundamental quantity, fundamental physical quantities, then dimensional formula of length is, हाँ देखो, dt है, velocity equals to distance by time, distance by time, distance बोलते क्या होता है L, टाइम क्या होता है T, T को इधर इंटू कर दो, L is equals to VT। क्या करें, कुछ भी नहीं बोला, आपको बोला तुम्हें बोल दो ना।